और बाहर जाके आप जब खा के आते हो तो आपके पास सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है, एक गिल्ट होता है कि यार मैंने अब आज पिज़्ज़ा खा लिया या आज ये खा लिया, अब मेरे को 2 दिन कुछ और करना पड़ेगा। या वुमेन्स के लिए वेट लूज करना थोड़ा मुश्किल होता है कंपेयर टू मेंस, ऑब्वियसली वुमेन्स के लिए। पुराने ज़माने में पान खाते थे, आप पान खाते हो? पान हैज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन इट। जितना कैल्शियम, जितना प्रोटीन, जितना आपको आयरन आपको पान से मिल रहा है उतना आपको नहीं मिलेगा। सो इट शुड हैव एटलीस्ट 3 to 4 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स इन अ डे। अब आप कैसे उसे प्लेस करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू शुड हैव at least 1% of your body weight in a form of leafy green and vegetables. Make a blood flow moving in your body, और अगर जब वो मूवमेंट होगा तो आपके पेन्स अपने आप कम हो जाएंगे। आप सिंपली जाके मेफ्टाल स्पाज नहीं खाओगे और हॉट पैक नहीं लगाओगे। हाय कविता। हाय भावना सिद्धू पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। सबसे थैंक यू एंड थैंक यू सो मच आज हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। और आई नो इट माइट साउंड लिटिल रूड, पर मैं चाहती हूँ कि आज मेरे ऑडियंस सबसे पहले जाने कि वो किन से बात कर रहे हैं। तो आई वांट कि आप एक ब्रीफ इंट्रो मेरे ऑडियंस को बताएं। ओके, सो हाय एवरीवन, आई एम कविता एंड टू स्टार्ट विथ आई वुड से कि आई एम जस्ट लाइक यू। I will take this story to 8 years down the line when I started my journey. I was a very overweight and I was suffering from few of the health issues. So I realized the time is to take the charge of my health. And I started my journey from 88 kgs and now I am at 68 kg. I won't say that I am a very lean person. But this journey from 88 to 68 made me realize कि there is बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत सारे सबको नहीं पता है. And as a female, as an Indian female, we neglect our health a lot. So that was my journey and that was the turning point that make me realize, no, I should learn about the fitness, learn about this journey and share it among the females, share it among all the ladies out there, all the females out there. And इसके पीछे मेरी दोनों daughters मेरे बहुत बड़े inspiration है, because I don't want them to follow the path and land into any health issues and then start their fitness journey or a health journey, I would say. So here I am Kavita. I am a fitness trainer certified by Dance to Fitness and running my Dance to Fitness studio since last 8 years in Noida sector 78. And this journey is not just about a fitness studio where I take aerobics, Pilates classes. I have a journey ahead and I keep on learning. I am a holistic health coach certified by WellG. Then I am a yoga trainer also who has a 200 YTT under her. And I specialize into a plant-based nutrition. I am a firm believer that your health is in your hand. If you eat right, you won't need medicine. This is by Hippocrates. So he used to say, make food your medicine. So I have been studying a lot about food being your medicine, and I am a certified plant-based nutrition coach, and even deeper taken my knowledge to a chakra or the energy centers of your body. There I go and I am a chakra-based nutritionist also. This is all about the learning I have gained in this last 8 years. And in this journey, I realized that there is a very big gap what you get in the market as a food. So when you go into the market, आप घर में सब कुछ कर रहे हो, मगर वीकेंड पे सबको चेंज चाहिए. आपको भी चाहिए होता होगा भावना बाहर जाने को. और बाहर जाके आप जब खा के आते हो तो आपके पास सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है, एक गिल्ट होता है कि यार मैंने अब आज पिज़्ज़ा खा लिया या आज ये खा लिया, अब मेरे को 2 दिन कुछ और करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा. सो दैट्स वेयर आई रियलाइज. एंड मेरे साथ ये रोज होता था. एवरी मंडे माई क्लाइंट्स, माई मेम्बर्स एट माई सेंटर यूज टू से मी, कविता मैंने ये खा लिया, वेट बढ़ गया है. दिस गिल्ट इज़ समथिंग वेरी बैड फॉर योर फिजिकल एंड अ मेंटल हेल्थ. कि आप इस गिल्ट के साथ खाना खाने जा रहे हो, आप वो 1 घंटा जो अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना जा रहे हो वो आप नहीं करते हो. सो देयर वर आई जॉइंड हैंड विद 2 of my partners and co-founded a cafe that is working on a clean eating perspective, and that is Cafe Edify. This is my venture after my DTF, Cafe Edify, and 2 other ventures that I run side by side. It's a passion ventures for me. That is Miraki, where I work on a gut-mind balancing with some workshops that I conduct yearly. And second thing is Twara.
So what is Twara? Do you know the meaning of Twara? No. So Twara is all about movement, flow. A female, a male, every body has a flow. आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ फ्लो कर रहा है, इसीलिए आप सब चल रहे हो. Yes. So that is what is Twara about. And in that Twara, we work on a balancing our internal hormonal organs in our body. So that's where Twara work comes into. So these are my 4 babies beside my 2 angels who have given me an inspiration to be here what I am today. ओके, थैंक यू सो मच कविता फॉर द लवली इंट्रोडक्शन. और आपके पूरे इंट्रो में यू आर इनटू हेल्थ एंड वेलनेस, ये तो फॉर श्योर है. तो अभी अगर जैसे हम देखते हैं तो 2025 जनवरी 2025 में हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो गई हैं 2025 में. और जब आपने अपनी हेल्थ जर्नी स्टार्ट की होगी तब से अब तक, जैसे कि हम देखें एयर पॉल्यूटेड है, वाटर पॉल्यूटेड है, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं. एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली कि लेट फूड बी योर मेडिसिन. तो 2025 में ऐसे क्या चेंजेस हैं जो मस्ट हैं हम अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आएँ अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करनी है तो? So for a healthy lifestyle, it's not just exercise. It's not just any one thing that you pick up. So most of us do a error like कि हम एक काम करते हैं कि हम सीधे गए और हमने एक्सरसाइज शुरू कर दो क्योंकि हमें हेल्दी बनना है. जनवरी 2025 1 जनवरी सबका मोटो होता है कि आज से तो हमें एक्सरसाइज शुरू करनी है या आज से हमें नहीं ये करना है, और 3 महीने बाद वो मोटो गायब हो जाता है. 3 महीने बाद, और कई बार तो हम जा ही नहीं पाते जिम, बस वो बना लेते हैं अपना मोटो. सो वो मोटो बन के वो गायब भी बहुत जल्दी हो जाता है. सो ऐसी चीज़ें ज़रूरी है 2025 में. दैट शुड बी अ कंसिस्टेंट गोल फॉर यू. इट्स नॉट अबाउट कि मैं जिम जा रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि मैं ये कर रही हूँ. आप कुछ भी उठाओ, उसे हैबिट में लेके आओ. उसे आपकी, जैसे आप उठ के सुबह चाय पीने आपकी हैबिट है, ठीक है, दैट इज़ नॉट अ राइट हैबिट. आई वुड ऑलवेज से, एंड आई ऑलवेज से टू एवरीवन, ड्रिंकिंग टी एज अ फर्स्ट थिंग इज़ नॉट एट ऑल अ राइट हैबिट. इट्स अ फर्स्ट थिंग दैट एवरीबडी शुड चेंज इन देयर लाइफ स्टाइल. सो सेम एज दिस थिंग, आप कुछ भी छोटी सी चीज़ उठाओ. चाहे आपने ये सोच लिया कि मेरे को इतने वॉक करना है, आधा घंटा वॉक करना है, बट वो आपकी हैबिट में आना चाहिए. अब हैबिट ऐसे नहीं बनती. हैबिट के लिए आपको उसको रेगुलरिटी में लाना चाहिए. मोटिवेट योर सेल्फ टू बी रेगुलर फॉर दोज थिंग्स फॉर एटलीस्ट 21 days. अगर आपने उसे 21 दिन चला लिया, वो आपकी हैबिट में आ जाएगा. सो टेक अ स्मॉल गोल कि मैंने वॉक करना है. टेक बिल्ड्स बेबी स्टेप्स कि मेरे को वॉक करना है. आप वॉक 21 दिन करते जाओ. उस 21 दिन के बाद आप दूसरा गोल अपने लिए प्लान कर लो. मेक योर कैलेंडर. Okay, so I just recall one instance. My daughter had always makes her yearly goal chart, or what we say the आजकल क्या चल रहा है ज़्यादा, जो हर we make a journey what we will be doing in this year and what we will be following. तो she made a bingo of this time and I liked it very much. So उसने लिखा है कि मैं at least 365 days में से वीक में 3 दिन एक्सरसाइज करने जाऊंगी. एंड मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, और उतना करके वो कट करती जाएगी. सो दिस इज़ अ स्मॉल वे टू प्लान योर जर्नी एंड प्लान योर सेम. तो आपने लिख दिया कि 21 दिन वॉक, फिर उस 21 दिन के बाद जो डेट है उसमें लिख दिया वॉक प्लस हैविंग फर्स्ट थिंग एज अ फ्रूट इन द मॉर्निंग, और not having tea in the morning first thing. So that is your second habit that you are building. ऐसे करके आप जब अगर स्टेप बनाते जाओगे, you will land into a good habit building thing, and by the end of the year you will transform yourself. That is for sure. So first and foremost step for 2025, start building small habits and be consistent. For that is what is important for a good and healthy living. ओके कविता, आपने हैबिट्स की बात की कि टाइम मैनेजमेंट करो या फिर हैबिट्स बनाओ, एक कंसिस्टेंसी अपने रूटीन में लेकर आओ. पर जो मदर्स होती हैं उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है खुद के लिए टाइम निकालना. तो उस पे आप क्या एडवाइस करोगे कि मदर्स को कैसे एक हेल्दी रूटीन में आना चाहिए? सी मदर्स, अगर आप मोबाइल पे रील देख सकते हो आज बैठ के, सो आपके पास टाइम है. इट्स नॉट अबाउट टाइम एंड इट्स नॉट अबाउट गेटिंग इनटू, इट्स टेकिंग टाइम फॉर योरसेल्फ. दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड 8 years डाउन माई लाइन. जब तक मैंने वो नहीं लिया था तो मेरी बॉडी wasn't fit and I was feeling dragging behind and everything was cropping all the way wrong. So when I decided to give myself a me hours, now people say me, आपके पास आपके दिन में कितने घंटे हैं? वही मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड जो वर्किंग में है, सब कुछ है, बट मेरे पास हमेशा यही क्वेश्चन आता है, आपके पास घर में दिन में कितने घंटे हैं जो आप ये सब कर लेते हो?
मैं ये सब इसीलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैं अपने लिए वो 1 घंटा निकालती हूँ। मैं ये सब इसीलिए दे पा रही हूँ क्योंकि वो 1 घंटा जब मेरी बॉडी इज़ टोटली रिलैक्स्ड, माई बॉडी इज़ वर्किंग आउट, इट्स नॉट अबाउट वर्किंग आउट और जस्ट डूइंग वर्कआउट कर लिया या कर लिया। झाड़ू पोछा वर्कआउट नहीं है, वहाँ यू आर नॉट मेंटली फ्री टू enjoy the body flow, enjoy the moment, whatever workout you are doing, if it is aerobics, it's pilates, it's yoga, it's walking, it's running, whatever you are doing, giving that 1 hour to yourself is the priority. आप कैसे अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए उठ के 5 बजे खाना बनाते हो, बट जब आपको वर्कआउट करना है तो ये क्यों आ जाता है कि यार मैं इतनी जल्दी नहीं उठ सकती। बच्चों को स्कूल में 7 बजे बस में बोर्ड भी कर देते हैं, खाना सब बना कर के भी दे देते हैं। सब कर सकते हो, सब कर भी देते हो, बट वो 1 घंटा, इफ नॉट 1 घंटा, स्टार्ट विथ हाफ एन आवर, यू विल स्लोली एनालाइज की रियलाइज कि मैं हर आधा घंटे के लिए वो जो बढ़ाती मैं 1 घंटे पहुंच जाऊंगी। So I have been training and I've been taking classes since last 8 years as I mentioned. वहाँ पे सारी फीमेल्स आती हैं एंड इट्स ऑल अबाउट स्टार्टिंग इट आउट, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, दैट इज़ द बिगेस्ट गोल। ओके, एंड कविता, इज़ इट ट्रू कि वुमेन्स के लिए वेट लूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है कंपेयर टू मेंस? ऑब्वियसली वुमेन्स के लिए वुमेन्स बॉडी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइक देन द मेल्स बॉडी। आप जब एज अ फीमेल यू गो थ्रू अ हार्मोन साइकिल, every day your hormones goes up and down, estrogens, progesterones, every day it changes. जब आपका ओव्यूलेशन होगा, जब आपका ल्यूथेल फेज आएगा, जब आपका फॉलिकुलर फेज आएगा, सो योर बॉडी इज ऑलवेज गोइंग अप एंड डाउन। और आपको मालूम है आपके बॉडी के हार्मोन्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो पूरी चीज़ें हिला देते हैं। आपने कभी भी एज अ फीमेल आपने नोट किया होगा कि पीरियड से पहले मेरा बेली फूल जाती है। मैं अच्छी भली वर्कआउट कर रही हूँ, लेकिन डाइट भी कर रही हूँ, मगर मेरा वेट 1-1.5 kg बढ़ गया। ब्लोटिंग हो जाती है और मेरी तो हमेशा एक कंप्लेन होती है कि यार ये लड़कों को ब्लोटिंग क्यों नहीं होती है? That's just because we as a female has so much hormonal changes in our body, and understanding hormones, understanding a hormone changes and giving her the food that is needed is just because that is important. आप सबका ध्यान दे दोगे, आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर दोगे, बट आपकी डाइट के लिए आप नहीं करोगे। अच्छा, बहुत सिंपल सी टिप देती हूँ, आपके पीरियड्स होते हैं तो आप कुछ स्पेशल खाते हो अपने लिए? ओके, नहीं। एंड पीरियड्स में सबसे ज़्यादा व्हाट हैपन्स, यू आर लूजिंग ब्लड फ्रॉम योर बॉडी। So have you ever think कि your body is depleting, going down on the blood? Oh, even it is not required in your body, but body work तो कर रही है उसके लिए, आपकी body से blood lose हो रहा है, you are menstruating. So you should feed yourself with a food that is needed. Simply adding a pomegranate bowl or a beetroot, बट पोमोग्रेनेट और बीटरूट के साथ लेमन डालना बहुत ज़रूरी है टू अब्जॉर्व द आयरन फ्रॉम दैट मिल्क। एंड आप अगर वो भी ऐड कर दोगे तो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू फॉर योर बॉडी। बहुत सिंपल सा है, बट अपन पीरियड्स में नहीं देखते हैं। हम बेड में पड़े रहेंगे, हॉट पैक लगा लेंगे और क्रिप करते रहेंगे कि हम ये नहीं खा रहे हैं, हमें हो रहा है। नहीं होगा वो सब। थोड़ा सा मूवमेंट करो उस समय, बॉडी में थोड़ा सा वर्कआउट करो। इट्स नॉट अबाउट इंटेंस वर्कआउट ड्यूरिंग पीरियड, जस्ट गो फॉर अ वॉक सिंपली एंड चेंज सम पैटर्न्स इन योर डाइट. Just add some of the high iron based food, just add some liquids, something like a small very dark chocolate, not loaded with sugar but dark chocolate loaded with cacao will help you ease the pains. So very बहुत छोटी चीज़ है, आप करके देखो और आपको चेंज मिल जाएगा. थैंक यू. और कविता, क्या लाइक पीरियड्स में हमें एक्सरसाइज स्टॉप कर देनी चाहिए? सी पीरियड्स में इंटेंस वर्कआउट्स नहीं करना चाहिए, बट या पीरियड्स में मूवमेंट होते रहना बॉडी पे ज़रूरी है. नाउ इट डिपेंड्स. आपने कभी देखा होगा कोई भी एटलीस्ट ये थोड़ी बोलता है कि मेरे को पीरियड्स आ गए तो मैं बैठी हूँ या मैं ये नहीं कर रही. सो इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग योर बॉडी दैट वे. एंड अगर आपकी बॉडी में बहुत क्रैम्प्स हो रहे हैं, बहुत पेन्स हो रहे हैं, तो आप वर्कआउट थोड़ा सा लेस करिए, वॉक पे चले जाइए. डोंट गो फॉर एनी इंटेंस वर्कआउट दैट इज़ वर्किंग ऑन योर कोर मसल्स, बट सम मूवमेंट विल मेक अ ब्लड फ्लो मूविंग इन योर बॉडी. और अगर जब वो मूवमेंट होगा तो आपके पेन्स अपने आप कम हो जाएंगे. आप सिंपली जाके मेफ्टाल स्पाज नहीं खाओगे और हॉट पैक नहीं लगाओगे. ओके, मेफ्टाल स्पाज जनरली बस ले लेते हैं. सो वो, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत है ना. सो उसको हटाने के लिए आपको सिंपली आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट रिच करने की ज़रूरत है. और न्यूट्रिएंट रिच करना बहुत ईजी होता है. अपने रूट्स में, अपने खानों में इतना न्यूट्रिएंट है कि हमें ये
पिल्स प्लॉप करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे पेन के लिए हो चाहे मल्टीविटामिन के लिए हो। सिंपल आप ग्रीन लीफी जूस पियो, ग्रीन लीव्स अपनी डाइट में बढ़ा लो, सैलड्स बढ़ाओ, फाइबर बढ़ाओ। आप खाना खाओगे तो आप खा लोगे राजमा चावल, मगर फाइबर कहाँ है उसमें? बट जनरली ऐसे बोलते हैं कि वेगन डाइट या फिर जो वेजिटेरियंस जो होते हैं उनको न्यूट्रिशंस की हमेशा कमी रहती है, एंड No, यू आर it's a- सेइंग कि ग्रीन लीफी। No, it's a very big myth कि vegan diet and a vegetarian diet is lacking in nutrients. It's all about कि आप खा क्या रहे हो। आपने हमेशा सुबह उठ के आपने पराठे खा लिए, और वेजिटेरियन डाइट की अगर मैं बात करूं तो आप सुबह उठोगे पराठा और लस्सी या ये ले लोगे, उसके बाद आप दिन में खा लोगे राजमा चावल, और फिर रात को वापस आओगे तो दाल रोटी या ये। नाउ इस पूरी डाइट में न्यूट्रिएंट है कहाँ? आपने प्रोटीन के लिए राजमा खा लिया, प्रोटीन के लिए दाल खा ली, ठीक है। कैल्शियम का सोच के आपने लस्सी वगैरह ले ली। कार्ब्स में आलू का पराठा या दाल का पराठा या जो भी पराठे आपने वो खा लिया, या आपने रोटी खा ली और रात को आपने वापस रोटी खा ली। इस पूरी डाइट में आपने न्यूट्रिएंट खाया कहाँ है? आप भी बताओ, आपकी पूरी डाइट में कहीं न्यूट्रिएंट है? आपकी पूरी डाइट में कहीं फाइबर गया है? नहीं गया ना। सो वो फाइबर कैसे जाएगा? हर डाइट में जितना इंपॉर्टेंस प्रोटीन को दिया जा रहा है, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इससे ज़्यादा फाइबर चाहिए होता है बॉडी को। सो अगर आप पूरा न्यूट्रिएंट रिच फूड खाओगे तो आपको कभी भी वेजिटेरियन और ये जो मिथ है ये नहीं होगा। एंड इवन वीगन, आई वुड से इट्स नॉट अबाउट वीगन में भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स कम है, क्योंकि वो मिल्क नहीं ले रहे लेकिन वो खा तो यही रहे। तो चेंज इज नीडेड टू मेक इट अ होल फूड प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल। नाउ होल फूड प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल में आपको क्या खाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर मैं होल फूड प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल की बात करूँ तो आपका डे की शुरुआत होनी चाहिए एक ग्लास लीफी ग्रीन जूस से। एक लीफी ग्रीन मतलब जिसमें बहुत सारे हरे पत्ते हैं। आपकी डाइट में आइडियली अगर मैं बोलूँ तो 1 ग्राम हरे पत्ते जाने चाहिए। मतलब आई वुड से आपके वेट का 1% हरे पत्ते जाने चाहिए, हरी सब्जियां जानी चाहिए और फ्रूट्स वगैरह जाने चाहिए। सो आप इतना लेते हो भावना? नहीं। सो जब आप अगर ये लेने लग जाओगे तो अपने आप डाइट न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगी। बट अभी जैसे मुझे पहले उतना रियलाइज नहीं हुआ था, बट जैसे जैसे लाइक आफ्टर डिलीवरिंग माई बेबीज एंड अब मुझे लगता है कि वी नीड टू डू सम चेंजेस अपनी डाइट में, एक्सरसाइज रूटीन में। अदरवाइज आफ्टर 5 years और 10 years मैं भी उसी कैटेगरी में आ जाऊंगी कि एक बीपी की गोली ले रही हूँ, एक शुगर की गोली ले रही हूँ, एक कोलेस्ट्रॉल के लिए ले रही हूँ। बस इस सब के लिए चेंज करने के लिए सबसे पहले अपनी डाइट में फाइबर बढ़ा लो। जब आप फाइबर बढ़ा लोगे तो आपका न्यूट्रिएंट अपने आप रिच हो जाएगा। जब न्यूट्रिएंट्स रिच होने लगेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व। और फाइबर किस किस चीज़ से बढ़ा सकते हैं? फाइबर इज, मैंने यही जो बोला, लीफी ग्रीन्स, फ्रूट्स। इट शुड हैव एटलीस्ट 3 to 4 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स इन अ डे। अब आप कैसे उसे प्लेस करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू शुड हैव एटलीस्ट 1% ऑफ योर बॉडी वेट इन अ फॉर्म ऑफ लीफी ग्रीन एंड वेजिटेबल्स। तो वो कैसे आप डालते हो? जूस के साथ। मैंने यही बोला, आप करीब, अगर आपका वेट, किसी का वेट 70 किलो है तो उसे मतलब 700 ग्राम के करीब पत्ते खाने हैं। आप बोलोगे मैं गाय थोड़ी हूँ या कुछ थोड़ी हूँ कि मैं पत्ते खाऊं। सो देयर वेट इट कम्स कि आप लीफी ग्रीन का जूस बना लो। आई एम नॉट टेलिंग यू टू ऐड, आई नो कि उसका जूस बनने से फाइबर कंटेंट थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि जूस में सारा निकल जाता है न्यूट्रिएंट, मतलब फाइबर्स निकल जाते हैं। बट अगर आप उस पत्तों को पका नहीं सकते, उतना नहीं खा सकते, तो वो जो डेंस जूस है, डोंट मिक्स वाटर विद दैट जूस, मेक इट इन अ कोल्ड प्रेस जूसर और अ जूसर जिससे सिर्फ जूस निकलता हो पत्तों का, और उस जूस को ले रहे हो तो आपका न्यूट्रिएंट बिल्कुल पक्का जा रहा है। आप किसी भी पत्तों को उठा के देख लो, किसी भी पत्तों को उठा के देखो, सब में न्यूट्रिएंट बहुत अच्छा होता है। पुराने ज़माने में पान खाते थे, आप पान खाते हो? पान हैज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन इट। जितना कैल्शियम, जितना प्रोटीन, जितना आपको आयरन आपको पान से मिल रहा है उतना आपको नहीं मिलेगा। सो स्टार्ट हैविंग पान। एंड पुराने ज़माने में याद है पान में कैल्शियम लगा देते थे, चूना लगता था। अब क्या करते हैं, उस चूना की जगह एक गोली खा लेते कैल्शियम की, जो बाद में स्टोन्स बना देती है। सो पुराने ज़माने के नुस्खे बहुत अच्छे हैं। जो दादी माँ के पान का पिटारा होता था, आई वुड से एवरीबडी शुड हैव अ पान का पिटारा इन होम। हल्का सा पान लेके उस पर चूना लगाओ, उस पर सौंफ डालो, उसमें थोड़ा सा बादाम डाल दो और खाने के बाद खाओ। आपका डाइजेशन भी सही होगा, ब्लोटिंग भी ख़त्म हो जाएगी, ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी मिल जाएंगे और एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। ओके, बट आपने बात की कि हमें
क्या बोलते हैं उसको, फाइबर्स अपने उसमें बढ़ाना चाहिए, बट एवरीथिंग तो केमिकल बेस्ड है। तो वो भी है कि हम जब लाइक अगर मैं एप्पल भी खा रही हूँ, मेरे को है कि मैं एप्पल खा रही हूँ, पर मेरे माइंड में ये भी है कि एप्पल के ऊपर एक कोटिंग हो रखी है जो इसको शाइनी और ब्राइट बना रहा है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी तो हम ले रहे हैं साथ में। फाइन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका आंसर देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप गोली खा रहे हो, सो वो कैप्सूल के ऊपर भी एक जो कोटिंग होती है दैट इज़ ऑल्सो एडिबल, बट इट हैज़ अ केमिकल बेस्ड फॉर यू। अगर आप एक दवाई कोई भी खा रहे हो, उसको बाइंड करने के लिए भी केमिकल का जरूर यूज़ हुआ होता है। सो केमिकल तो आपकी बॉडी में जा ही रहा है, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अगर आपको ऑर्गेनिक, ऑथेंटिक ऑर्गेनिक सब्जियां वगैरह मिल जाए, सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, तो वहाँ तो आप एकदम बच गए। देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल नाउ डेज वर्किंग टू ब्रिंग बैक दैट ऑर्गेनिक थिंग इन योर लाइफ स्टाइल, सो एम फॉर दैट। फर्स्ट, अगर आपको ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा है, पहले कोशिश करो ऑर्गेनिक मिल जाए। ऑर्गेनिक ढूंढने का एक बहुत सिंपल तरीका मैं बताऊंगी। व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च, सिंपल से मैं बताती हूँ कि व्हेन आई गो विथ माय वेंडर रिसर्च, आई टॉक विद देम इन डिटेल कि आप कहाँ से सब्जियाँ लेते हो, कैसे लेते हो, क्या करते हो। अगर आपका वेंडर्स हर रोज़ आपको ऑर्गेनिक लिख के दे रहा है, वो नहीं दे सकता, इतना प्रोड्यूस नहीं होगा, या तो उसके पास बहुत फार्म से अलग अलग जगह जहाँ से प्रोड्यूस होकर आ रहा है तो वो ऑर्गेनिक दे रहा है। अगर वो वीकली या बाय वीकली प्रोडक्शन दे रहा है, दैट मीन्स कि वो बंदा जेन्युइनली आपको ऑर्गेनिक दे रहा है। वन वे टू चेक इट आउट। अभी इंडिया में इतना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है जो आपको बता सकता है कि आपका ऑर्गेनिक है या नहीं है, बट दिस वे, फर्स्ट वे, यू कैन चेक द वेंडर दैट वे। सेकेंड वे इज़ आप उनको बोल सकते हो आपके कोई है जिसमें आपने अपने सब्जियों वब्जियों को टेस्ट कराया हुआ है, वो वे कर लो। वो भी नहीं होता है, थर्ड वे, आप जो भी सब्जियां ला रहे हो बेकिंग सोडा में डिप करके रख दो, सॉल्ट वाटर में डिप करके रख दो, रिमूव द केमिकल्स आउट ऑफ दिस। सो दिस इज़ द थर्ड वे। बट वो सोच के अगर आप ये सोच लो कि मैं एप्पल ही नहीं खाऊं, ये बिल्कुल गलत है। उससे ज़्यादा नुकसान आप जो गोलियां खाओगे वो आपको करने लग जाएगी। एंड फोर्थ एंड फॉरमोस्ट थिंग, रिमेंबर ऑलवेज हैव ऑर्गेनिक थिंग। आज की डेट में यहाँ के एप्पल, वहाँ के एप्पल, वॉशिंगटन एंड दिस दैट, बहुत कुछ है। जितना दूर जाओगे उतना प्रिजर्वेटिव में बंद के वो आएगा। आपने अगर आज की डेट में किन्नौर एप्पल है, वो आपके पास उग रहा है, ज़्यादा पास है, तो वो आपके लिए अच्छा है। अगर आप बोलोगे कि मैं अल्फांसो मैंगो और ये मैंगो खा रही हूँ अभी के सीज़न में या सीज़न शुरू होते ही, वो आपके लिए नहीं है। आपकी जो सीजनल है वो आपकी बॉडी के लिए है, और वो उतना ही नॉन ऑर्गेनिक होगा जितना आप चाहो, मतलब केमिकल से कम लेडन होगा, क्योंकि वो उसी सीज़न के लिए बना हुआ है। अब कोई भी चीज़ बिना सीज़न के करेंगे और पैदावार बढ़ाने के लिए करेंगे तो उसमें फिर केमिकल भी डलेगा, ये भी डलेगा। बट इन सब चीज़ों को ये सोच के कि आप लीफी ग्रीन हटा दो, वो हटा दो, तो फिर आप गोलियों के ऊपर आ जाओगे। नाउ चॉइस इज़ योर्स, क्या खाना है, किससे बचना है। तो कविता, जैसे कि आपने ऑर्गेनिक फूड्स की बात की, तो ऑर्गेनिक फूड्स भी बहुत सारे होते हैं, पैकेट में बंद होके भी मिलते हैं, और फ्रूट्स भी होते हैं ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक फूड्स को लेने का क्या तरीका है जो हमारी बॉडी। ऑर्गेनिक सब चीज़ें आने लग गई है आजकल, चाहे वो दालें हों, चाहे वो कुछ भी हो, ऑर्गेनिक के उस पर सब चीज़ें आने लग गई है। जैसे कि मैंने बताया कि ऑर्गेनिक ऐसे आप चेक कर सकते हो फ्यू वेज़ कि ऑर्गेनिक खाना कैसे है या ऑर्गेनिक क्या लेना है। बट ऑर्गेनिक के बाद भी ऐसा नहीं कि आप ऑर्गेनिक शक्कर खा रहे हो। चीनी तो चीनी है, वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन देगी। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑर्गेनिक बोल के ऑर्गेनिक में आप कुछ भी खा रहे हो। ऑर्गेनिक के नाम पे आपको मैदा भी मिल रहा है, तो वो मैदा भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन देगा। सो ऑर्गेनिक से मेरा मतलब है, ऑर्गेनिक सबसे पहले अपन ने जैसे बात करी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपकी डाइट में डालिए, वो आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम करेगा। जैसे मैंने लीफी ग्रीन बोला, उसको डालने के लिए जूस ले लिया आपने, हर खाने के साथ आपने सैलड बाउल्स ले रहे हो, तो आपका फाइबर इनटेक भी जा रहा है और आपकी बॉडी फाइबर जा रही है, तो आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन भी कम होगा। एंड वैसे ही सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक भी आप ले रहे हो तो, लेकिन किस टाइम पे क्या चीज़ कैसे खाना है, दैट मैटर्स टू मेक योर बॉडी हेल्दी एंड कीप यू फिट। ओके, किस टाइम पे क्या चीज़ खानी है, दैट मेक्स, तो जैसे एज के हिसाब से डज इट चेंज कि सो आइडियली एक डाइट है वो सब पे तो नहीं अप्लाई हो सकती है। नहीं, डाइट हमेशा एक ही सब पे अप्लाई होती है। आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि मेरे को बीपी है तो मैं ये खा लूँ, मेरे को थायराइड है तो मैं ये खा लूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपकी बॉडी तो एक ही है, उसके आप ऑर्गन्स यहाँ से लेके शुरू करो या ब्रेन से लेके चलो, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड वर्क कर रही है। तो सेम हैपेंस विद द डाइट थिंग। तब क्या है कि आप किस समय जो भी खा रहे हो आपकी डाइट में सही खाओगे तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, उठो, खाना और सोना, खाना और खाना बंद करना सबसे पहले
सूरज के ऊपर डिपेंड है। आपने सुना होगा सर्कैडियन रिदम के बारे में, आपने सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, ठीक है? इंटरमिटेंट है फास्टिंग ना? जो हाँ, सर्कैडियन रिदम से ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत फेमस है। वो क्या है? आइडियली आपको सूरज की किरणों के हिसाब से सूरज जब आ गया है, उठ गया है, उस सबसे खाने की चीज़ होनी चाहिए। जब सूरज ढल जाता है उसके बाद खाना नहीं चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैबिट टू कीप योरसेल्फ फिट एंड not inflamed is eating as per the circadian rhythm, that is eating with the day and night for day and night. तो कविता, इसको और सिंपल अगर मैं बनाऊं तो सूरज ढलने के बाद क्यों नहीं खाना चाहिए? सूरज ढलने के बाद आपकी बॉडी इज ऑल्सो मेड इन अ वे कि आपको बॉडी को स्लीपिंग मोड में जाना है। अब आपको खाना किस लिए चाहिए होता है? आपकी बॉडी में एनर्जी देने के लिए, ठीक है? आपने सुबह उठे, आपने फ्रूट वगैरह खाया, आपने दिन का टाइम होता है जब आपकी बॉडी को सबसे अच्छा डेंस खाना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कार्ब्स थोड़ा सा दिन में लेना चाहिए, रात को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कार्ब्स का क्या काम होता है बॉडी में? आपकी बॉडी को एनर्जी देना, ठीक है? सो आपने कार्ब्स लिया दिन में, उसके साथ प्रोटीन भी लिया, फाइबर भी लिया। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपकी जो प्लेट होती है ना, उसको आपको डिवाइड ऐसे करना चाहिए, जो आधा हिस्सा है प्लेट का, उसका मतलब उसमें सब्जियाँ होनी चाहिए और सैलेड का पोर्शन हो जाए। बाकी जो आधा हिस्सा है उसको आप वापस हाफ में डिवाइड करो। वो आधा हिस्सा आपकी रोटीज़ या चावल होना चाहिए और बाकी आधा हिस्सा प्रोटीन फॉर्म में दाल हो, आपका राजमा हो, छोले हो, चने हो, वॉट एवर इज़ अ प्रोटीन, दैट शुड बी योर आइडियल डाइट, ठीक है? ये एक सर्कल फॉर्म में आप डिवाइड करके वैसे ले लो। नाउ आपने ये खाना लिया लंच टाइम में। नाउ इवनिंग टाइम जब आपकी आती है, तो इवनिंग इज़ द टाइम जब बॉडी आपकी स्लीपिंग मोड की तरफ चली जाती है। अब आप, ठीक है, आपने 6 बजे खाना खाया और एक आपने खाया 9 बजे खाना। आपको खाना आइडियली सनसेट के टाइम पे इसीलिए खा लेना चाहिए। अपने पुराने लोग, इवन अ जैनिज्म कल्चर, इवन लॉट्स ऑफ अदर कल्चर ऑल्सो हैव दिस से कि सुबह खा लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर ले। जब आपकी बॉडी डाइजेस्ट अच्छा कर लेगी तो आपको नींद अच्छी आएगी। आप जब नींद अच्छी आएगी तो आपकी बॉडी टॉक्सिन रिलीज करेगी, डिटॉक्स करेगी सोते सोते, और जब डिटॉक्स करेगी तो आपका नेक्स्ट डे मॉर्निंग मूवमेंट, बाउल मूवमेंट, एवरी मूवमेंट सही रहेगा, अपने आप ही बॉडी की हीलिंग होती जाएगी। तो सिंपल एक खाना जल्दी खाने से आपको बॉडी का सारा सिस्टम क्लियर सही हो जाता है। सो सोना खाना के बीच में मिनिमम 3 to 4 आवर्स का गैप होना बहुत ज़रूरी है। बट प्रैक्टिकली जो एक चैलेंज आता है ना, वो ये आता है कि आपको सनसेट से पहले अगर मैंने कुछ खा लिया उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। पहले तो हम सो जाते थे 8 बजे तक, अब हम सोते हैं 12 बजे तक, 1 बजे तक, तो आपको दोबारा से भूख लग जाती है। फिर आप उसको फॉलो नहीं कर पाते जो आपने बताया कि आपको सनसेट से पहले खाना खा लेना चाहिए और सनराइज़, क्योंकि अब आपका लाइफस्टाइल इतना बदल गया है ना, तो उसको कैसे आप लाइफस्टाइल बदलने की वजह से इतनी सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस आ गई है। इतनी सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ आ गई है तो इतनी सारी केमिकल लेडन चीज़ें अपन को लेनी पड़ रही है। तो आंसर इज़ कि आपकी लाइफस्टाइल को सही करना ज़रूरी है। बट इफ़ एनी चांस यू आर नॉट एबल टू डू इट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लान योर डे अकॉर्डिंगली। आप बहुत सिंपल सी चीज़ करके देखो। अगर आप सुबह उठते ही पानी पीते हो तो आपकी बॉडी को आदत है। अगेन आई विल गो टू माई फर्स्ट थिंग्स जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, 21 दिन इज़ अ हैबिट बिल्डिंग स्टेज फॉर द डे। आपने सपोज़ आप 10 बजे, आप 11 बजे सो रहे हो, उससे 3 घंटे पहले 8 बजे आप खाना खाओ। उसके बाद अगर आपको भूख बहुत लग रही है तो सिर्फ फ्रूट या कोई सब सैलेड जैसे करके चॉप करके रखो, उसको खा लो। भूख बहुत लग रही है, अगर भूख होगी तो भूखा इंसान होगा तो वो कुछ भी खा लेता है। आपको जब भूख लगती है तो आप घर पे जाके जो पड़ा होगा वो बना के वो लेके खा लेते हो, दैट इज़ भूख। अदर इज़ जस्ट अ माइंड सेट, यार मैं तो जगी हुई हूँ, अब मुँह कुछ खाना चाहिए इसलिए खा लूँ। सो अगर आपको भूख लग रही है तो आप उस समय वो चीज़ खाओ। अगर आप वो खा रहे हो मतलब यू आर रियली हंग्री, आपकी बॉडी को डिमांड थी, आपने खा ली। ओके, बट कविता, क्या हम रॉ फूड खा सकते हैं सनसेट के बाद? सी, इट्स नॉट अबाउट रॉ फूड और नॉट अ रॉ फूड। बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ रॉ पे खा के आज हेल्दी हैं। रॉ पे खा के उन्होंने अपनी सारी लाइफस्टाइल इश्यूज सही कर चुके हैं। सो
वंस वी स्टार्ट ईटिंग रॉ 2-3 दिन हो सकता है आपकी बॉडी को ब्लोटिंग दिखा रहा है, सब दिखाएगा, क्योंकि बॉडी अडेप्ट नहीं है रॉ खाने के लिए। इवेंचुअली वंस योर सिस्टम इज़ ओके एंड योर बॉडी इज़ लेस इन्फ्लेम्ड, आपको रॉ भी रात को सूट होगा। इट्स नॉट अबाउट कि रॉ नहीं खा सकते, इट्स अबाउट हमने अपनी बॉडी को कैसे बना लिया है और उसको हमें कैसे चेंज करना है। वन थिंग इज़ देयर, अगर कुछ बॉडी आपको स्टार्टिंग में रॉ नहीं खाने देती है, मेक इट अ सॉर्टेड वेजीज। बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं चिप्स का पैकेट लेके खा लूँ रात को 11 बजे या नमकीन उठा के खा लूँ। सॉर्टेड वेजीज लेके खा लूँ। आई एम टेलिंग यू, इफ़ योर बॉडी इज़ हंग्री, वो सॉर्टेड वेजीज आपको उतनी अच्छी लगेगी। बट स्टार्ट बिल्डिंग एज अ स्मॉल हैबिट अगेन, कि मैं 3 घंटे नहीं खा रही हूँ, फिर मैं उसे 4 घंटे पे ले आऊँ। इट्स ऑल अबाउट हैबिट। आप करवा चौथ करते हो या कोई भी फास्ट करते हो? फास्ट में करती हूँ। तो फास्ट के टाइम आपको भूख लगती है? फास्ट के टाइम जनरली नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? आपने In fact, सोचा कभी? हाँ, क्या रीज़न है कि आपको भूख नहीं आप लगती? मोटिवेटेड रहते हो। इट्स ऑल इन योर हियर, इट्स ऑल इन योर ब्रेन। सो इट्स नॉट अबाउट ही कि मेरे को पेट में भूख लग रही है और बॉडी खाना मांग रही है और ये है। इट्स योर ब्रेन। टेम योर ब्रेन, टेम योर बॉडी टू बी हैविंग अ राइट हैबिट्स। वो धीरे धीरे आएगी। आई एम नॉट सेइंग कि आप कल से शुरू हो जाओगे, और आप अगर कल से शुरू होगे तो आपको 4 दिन 5 दिन यार ये तो मेरे से नहीं हो रहा, बॉडी विल गो इन टू दिस डिलेमा। ओनली थिंग यू नीड टू चेंज इज परसिस्टेंस बीइंग देयर एंड स्लोली बिल्डिंग द हैबिट ओवर द टाइम फ्रेम। ओके, अगर मैं पूछूं कि मॉर्निंग से लेके सुबह उठने से लेके रात तक हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए फूड एंड एक्सरसाइज हैबिट्स में? सो सपोज लेट्स से कि इफ़ यू वेक अप एट 6 o'clock, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको 1 ग्लास या 2 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर पीना ही चाहिए। इफ़ पॉसिबल हैव इट इन अ मलासन पोजीशन। अब मलासन एक योगा का पोस्चर है, अगर आप उस आसन में वो लेते हो सो आप अपनी बॉडी का बाउल मूवमेंट बहुत सही कर लेते हो। देन गो विथ योर डेली रूटीन्स एंड एज अ फर्स्ट मील ऑफ अ डे हैव अ फ्रूट। नाउ वाई फ्रूट? क्योंकि आपकी बॉडी अल्कलाइन रहती है फ्रूट से। फ्रूट सबसे ज़्यादा ईजी डाइजेस्टेबल थिंग है। सो आपने फ्रूट खाया या एशगार्ड जूस ले लो। एशगार्ड इज़ अ वंडर रेमेडी। Lots of people say about Ashgard juice. Sattvic movement is lots promoting on the Ashgard juice. There are many benefits of Ashgard juice. आप अगर खोल के देखेंगे नेट तो आपको लगेगा यार ये क्या, ये तो पेठा, इतना सा पेठा ये फ़ायदा कर जाता है। वो आपकी बॉडी को एल्कलाइन लगता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। वो ले लो, आधा घंटे का गैप दो, बट उसमें भी आप हर तरह के लीफी पत्ते डाल के वो जूस बनाओ ताकि आपकी बॉडी क्लिन्स हो, आपकी बॉडी को बहुत सारा न्यूट्रिएंट मिल गया। वो न्यूट्रिएंट मिल गया तो मतलब आपको मल्टीविटामिन तो चाहिए ही नहीं। आपने अपनी मल्टीविटामिन की गोली खा ली 1 ग्लास जूस और पेठे के जूस और लीफी ग्रीन जूस के बाद। देन एज अ ब्रेकफास्ट हैव समथिंग दैट इज़ न्यूट्रिएंट डेंस। आई वुड आइडली से हैव ओट्स और क्यूनोआ, बॉइल्ड क्यूनोआ, ओट्स इन सम प्लांट बेस्ड मिल्क और समथिंग में आपने बॉयल कर लिया। आई पर्सनली प्रेफर अ प्लांट बेस्ड मिल्क बिकॉज उसका न्यूट्रिएंट अच्छा होता है एंड मेरे को कोई भी मिल्क के हार्मोन्स नहीं जा रहे हैं। आई एम अ वीगन, आई एम अ प्लांट बेस्ड वीगन, सो आई फॉलो दिस लाइफ स्टाइल। देन उसमें लेकिन ओट क्यूनोआ में आप प्लीज़ मेक श्योर कि आप हेम्प सीड, चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड पाउडर ये सब जरूर डालो, क्योंकि इससे आपकी बॉडी को ओमेगा 3 मिलता है। ओमेगा 3 इज़ वेरी मच नीडेड, क्योंकि हम आजकल इतना रिफाइंड खाना खा रहे हैं, इतना प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं, इतना सीड ऑयल खा रहे हैं कि हमारी बॉडी में ओमेगा 6 हाई हो जाता है, ओमेगा 3 नीचे हो जाता है। उसकी वजह से फिर कोलेस्ट्रॉल और ऑल अदर हार्ट इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। सो कीप योर कोलेस्ट्रॉल इन बैलेंस। यू हैव टू सी कि मेरी बॉडी को ओमेगा 3 मिले। अब ये सीड्स आप ऐसे तो सोचोगे यार कैसे खाऊं, कहाँ खाऊं। आपने सुबह अपने लिए ओट्स या क्यूनोआ का एक बाउल बनाया जिसमें आपका प्रोटीन भी चला गया, आपका ये सब न्यूट्रिएंट्स भी चले गए, आपका सेकेंड पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट इन योर बॉडी इज़ डन। नाउ यू डोंट नीड लाइक ये ओमेगा की दवाइयाँ, ये सब चीज़ें, वो आपने न्यूट्रिएंट दे दिया। देन इफ़ यू फील हंग्री हैव योर ब्रेकफास्ट, वॉट एवर इज़ इंडियन ब्रेकफास्ट। पराठे नहीं प्लीज़, पराठे उस समय बॉडी को नहीं चाहिए। मेक सम पोहा विथ वेजीज, मेक सम उपमा और अ दाल चीला और ओट्स चीला और एनीथिंग दैट यू फील, इडली, इन सब में बहुत न्यूट्रिएंट है, वो खाओ। गिव अ गैप ऑफ 4 hours आफ्टर दिस। या पेट में कुछ गया है उसे डाइजेस्ट तो होने दो, उससे पहले अपन दूसरा चीज़ नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और ये भी दोनों चीज़ जब खाइए जब आपकी बॉडी भूखी हो और भूख लग रही हो। देर आर सम डेज योर बॉडी विल क्रेव फॉर फूड, सम डेज यू विल जस्ट ईट कि यार पोहा बनाना है, टाइम हो गया, ये खा के जाना है, ये नहीं। पॉइंट आपने बोला ना कविता कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा ब्रेक दो, ये मुझे लगता है आपने बहुत राइटली पॉइंट बोला, क्योंकि मैं कल ही एक आयुर्वेदा डॉक्टर से मैं मिली
टू डिटॉक्स माई बॉडी। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे बोला कि आप मुझे बहुत ही सिंपल डाइट देना, क्योंकि मैं उतना बना नहीं पाऊँगी। तो वो कहते, भावना डाइट तो सिंपल ही होती थी हमारी डाइट में था कि सुबह खाओ शाम को खाओ और बीच में एक गैप दो अपनी बॉडी को, जिसे अब इंटरमीडिएट फास्टिंग का नाम दे दिया है। और वो बहुत ज़रूरी भी है। ये जो एक है ना कि हर 2 घंटे के बाद हमें अब स्टफ़ करते जा रहे हैं हम ये अपनी बॉडी। बहुत गलत सिनेरियो है। आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम तो दो, 4 घंटा मिनिमम दो। अगर आपने पक्का खाना खाया है, अगर आपने फ्रूट्स खाया है तो 2 घंटे में बॉडी डाइजेस्ट कर जाएगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि इफ़ योर डाइजेशन क्या खा रहे हो उसका उतना टाइम दो। उसके बाद अपन दूसरा डाल लेते हैं, अरे भैया टाइम हो गया। खाना क्या हो गया आजकल, टाइम के हिसाब से हो गया, ना अपनी पेट के हिसाब से ना अपनी भूख के हिसाब से। अरे 1 बज गए खाना खाना है, 3 बज गए खाना खाना है, जो भी टाइम हो गया। ईट एज पर योर बॉडी क्लॉक, गिव इट अ टाइम टू डाइजेस्ट। दिन के 3 मील इज़ मोर देन एनफ फॉर एवरीबडी, मोर देन एनफ। ये जो बाकी के जो मिड मील स्नैक्स और इवनिंग चाय और ये इवनिंग स्नैक आ गए, दिस इज़ रॉन्ग। आइडियली आपको इवनिंग वो 6 बजे बॉडी हमेशा बोलती है कि भूख लग रही है। आपको भी लगता होगा भावना? आप उसे टी से रिप्लेस कर देते हैं। आप चाय खा लोगे, लेकिन लेकिन नाउ इमेजिन आपने चाय खाई, चाय के बाद भूख खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें कैफीन है। चाय कॉफ़ी उस समय लेते हैं तो भूख खत्म हो जाएगी। फिर आपको भूख ला के लगती है 9 बजे, फिर आप ब्लेम कर देते हो तो मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है। तो दैट इज़ नॉट द वे। 6 बजे आप पूरा खा लो ना, उसके बाद आपको भूख लग रही है तो आप शाम को थोड़ा सा फ्रूट खा लो। वो 5 दिन लगेगी, 6ठे दिन लगेगी, 7वें दिन नहीं लगेगी। माई लाइफस्टाइल इज़ कि मैं 6 बजे बाद कुछ नहीं खाती हूँ, सुबह 9 बजे तक कुछ नहीं खाती हूँ। सो वो जो 14 आवर गैप है, मेरी बॉडी प्रॉपर डिटॉक्स करती है। मैं कोशिश करती हूँ कि इस 14 को 16 आवर बढ़ा दूँ। इट डिपेंड्स कि मेरे डे शेड्यूल में कैसा है और मेरी बॉडी की। बाय नाउ आई हैव रियलाइज कि मेरी बॉडी को भूख किस दिन ज़्यादा लग रही है। अगेन आई विल से फीमेल साइकिल पे आ सकती हूँ मैं इस बात पे। आपके अगर पीरियड्स आने वाला होगा तो एज अ फीमेल आपको भूख ज़्यादा लगेगी, तब आपको इच्छा करेगी कि नहीं मैं थोड़ा ले लूँ, बट अदरवाइज आपकी बॉडी नहीं क्रेव करेगी। सो ट्राई छोटी छोटी हैबिट्स बिल्ड करके ये सीखना ज़रूरी है कि हमें बॉडी को क्या चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि यार ये है हम सब भर ले बॉडी में, बिल्कुल गलत है। सो सिंपल हैबिट्स लाइक आपने फिर लंच किया, लंच में पहले सैलेड खाओ, उसके बाद लंच करो। उसके बाद आप अगर डिनर पे जा रहे हो, डिनर 6 साढ़े 6 बजे, जो आपको भूख बॉडी ने जब आपको घंटी बजाई पेट से वो एक आवाज़ आएगी। और अगर भावना आप नोट करना शुरू कर दोगे, आप लोग भी अगर नोट करना शुरू करोगे कि वो एक बहुत फिक्स टाइम होता है जब हमें बहुत ज़ोर से भूख लगती है, उस समय प्रॉपर खाना खाओ, देन इवनिंग में रहने दो। दिस इज़ द ईटिंग हैबिट। नाउ प्लीज़ मेक श्योर उसके अलावा 1 घंटे का वर्कआउट या 10,000 स्टेप्स से ज़्यादा आपकी बॉडी को एज अ फिज़िकल एक्टिविटी चाहिए। सो खाना, फिज़िकल एक्टिविटी और थोड़ा सा मेंटल एक्टिविटी इन अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, ब्रीथिंग, प्राणायाम, जर्नलिंग हैबिट, ये सब चीज़ें चाहिए तो कीप अ बॉडी फिट एंड हेल्दी। जो 1 आवर एक्सरसाइज की आपने बात की, तो बाहर तो मोस्ट आधा टाइम पोल्यूशन होता है, आधा टाइम अगर आपका वेदर इतना एक्सट्रीम है तो उसको जिम से रिप्लेस कर दिया है लोगों ने। और जिम आप उतना मतलब रेगुलर नहीं हो पाती है, स्पेशली वुमेन्स उतना रेगुलर नहीं हो पाती हैं जिम के लिए। तो उसमें क्या सजेस्ट करेंगी कि आपका 1 आवर एक्सरसाइज रूटीन क्या क्या हो सकता है? सो आई वुड से कोविड ने है ना हमें बहुत कुछ ऑप्शन दे दिए ऑनलाइन का। Exactly. आजकल सारी क्लासेस ऑनलाइन है। अगर आप खुद से नहीं कर सकते हो 1 घंटा अपने लिए निकाल सकते हो, या योगा आपको नहीं आता है, पहली बात, प्लीज़ डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ इफ़ यू आर नॉट ट्रेन टू डू दैट। अपन क्या ये अच्छा है ये सब करना है, उसके चक्कर में हम बहुत कुछ गलत कर जाते हैं। बॉडी का एक सिस्टम है। अगर मैंने अपने एब्स मसल्स, कोर मसल्स के लिए वर्क किया है तो मेरे को दूसरे मसल्स को रेस्ट देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कर सकूं। तो अपन स्टार्टिंग में बहुत सारा कर जाते हैं, उसके बाद एकदम से धप कर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है ये हो गया वो हो गया। सो प्लीज़ जॉइन समबडी। आज की डेट में हर जगह ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, आपके टेस्ट के हिसाब से ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है। इट्स अबाउट मूविंग योर बॉडी, इट्स अबाउट हैविंग दैट मूवमेंट इन योर बॉडी। सो आप कहीं से भी कुछ भी वो 1 घंटा निकाल सकते हो, चाहे खुद करो चाहे एनरोल करके करो, बट वो 1 घंटा निकालो अपने लिए। चाहे आप यूट्यूब देख रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, बट यूट्यूब वगैरह में यही ध्यान रखना वो आपकी बॉडी के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप कोई भी ट्रेनर के पास जाते हैं, सो वो ट्रेनर इंश्योर करते हैं, अगर ट्रेनर सही है तो वो इंश्योर करेगा, आपसे पूछेगा कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ क्या है एंड उसके हिसाब से वर्कआउट डिज़ाइन कर देगा। जॉइन देम, लर्न फ्रॉम देम, बिल्ड अ हैबिट, देन इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू
सो कंटिन्यू विद देम, अदरवाइज सेल्फ डूइंग दैट। और आपके टाइम के हिसाब से आज की डेट में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि जिम जाना ज़रूरी है। एक लैपटॉप का बटन दबाने की ज़रूरत है या मोबाइल पे उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है और आप अपना वर्कआउट कर सकते हो। तो ये वाला काम ही नहीं है कि जिम जाना है या मेरे को बाहर जाना पड़ेगा। आपका बच्चा सो रहा है उस समय वर्कआउट। आप अगर बहुत मदर हैं, मेरे स्टूडियो में आई हैव सीन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। भावना, 1 साल में मदर्स वापस फिट हो गई हैं। आई कैन गिव यू n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम माई स्टूडियो इटसेल्फ जो ऑनलाइन करती थी। आई हैव सीन माई गर्ल्स डूइंग एट नाइट 1 बजे भी। मेरा बच्चा सोता है 1 बजे, मैं 1 बजे वर्कआउट करूँगी। आइडियली दैट इज़ नॉट द टाइम, बट दैट इज़ द वे यू कैन डू नाउ। रिकॉर्डिंग्स पे मिल जाती है, मतलब मेरी रिकॉर्डिंग्स चली जाती थी, मैं रिकॉर्डिंग देती थी, वो कुछ भी करो। इट्स ऑल अबाउट अ माइंड सेट। एक छोटा सा माइंड पे आपको करना है कि मेरे को वो अपने लिए करना है। कविता, जब मैं TTF स्टूडियो आई थी, आपसे फर्स्ट टाइम मिली थी, तो मैंने आपको बोला कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, एंड यू सेड कि मेरे से वेट की बात मत करना। अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो मुझसे वेट की बात मत करना। तो वो क्यों बोला था आपने? अच्छा, सो द वेट लॉस इज़ अ बाय प्रोडक्ट। आई ऑलवेज से कि वेट लॉस इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। मेरे यहाँ कोई भी आता है ना, मैं बोलती हूँ कि मैं मैगी नहीं बना रही हूँ, ठीक है। अगर आप आ रहे हो, ये समझो कि आप जैसे जितनी शिद्दत से, जितने मन से किचन में एक सब्जी बनाते हो, मसाले डालते हो, वो मसाला अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल में डाल लिया तो वेट लॉस तो बाय प्रोडक्ट है। सो वो मसाले क्या क्या हैं, एज अ फीमेल बॉडी को मैं अगर पहले लेके बताऊं, सो अगर आपका मसाला अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आप 1 घंटा क्लास के लिए आ रहे हो, अपनी डाइट में आपका खाना प्रायोरिटाइज कर रहे हो। जिस दिन आप अपने लिए खाना बनाना शुरू कर लोगे ना भावना, बिलीव मी, आपका वेट लॉस अपने आप हो जाएगा। अभी आप अपने घर वालों के लिए खाना बनाते हो और उसमें जो होता है वो आप खा लेते हो। जिस दिन आपने ये सोचा कि मैं अपने लिए ये बना रही हूँ, अपने लिए ये कर रही हूँ, जैसे वो मैंने प्लेट बताई कि प्लेट में ऐसा ऐसा होना चाहिए, सिंपल वो खाना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आज राजमा खाओ और कल दो चपाती और छोले खाओ। मैं कोई आपको कैलोरी काउंट नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही, बट आधी प्लेट आपकी वेजीज और सैलड होगी और आधी प्लेट में आपका आधा रोटी और वो होगा, चाहे वो 1 रोटी हो, चाहे 2 रोटी हो, चाहे 3 रोटी हो। रोटी आपका पेट बताएगा कितना खाना है। अगर आपने सही च्यू करके खाना खाया है तो आपकी बॉडी आपको बता देगी। एक सिंपल टिप ट्राई करके देखना भावना, यहाँ पे आप एक दिन 20 मिनट लगा के खाना खाना, ठीक है, बैठ के च्यू करके, ठीक है, 20 मिनट होने चाहिए, घड़ी देख के 20 मिनट खाना। और दूसरे दिन आप जो रेगुलर खाते हो वो खाना, और आप मेरे को बताना आपने कितनी रोटी खाई है। सो दैट इज़ द वे टू ईट द थिंग। 20 मिनट्स आफ्टर योर ब्रेन विल गिव यू अ सिग्नल कि मेरा पेट भर गया है। अब आप वो 20 मिनट्स में 20 रोटी खाओ या स्लो खाओ, दैट इज़ द वे। सो दैट इज़ द सेकेंड इंग्रेडिएंट। थर्ड इंग्रेडिएंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ योर हार्मोनल हेल्थ एज अ फीमेल। सो वो तीसरा मसाला होता है आपकी हेल्थ के लिए। अगर आपने हार्मोनल हेल्थ पे ध्यान दे दिया है, आई एम नॉट सेइंग टू गो इनटू मेडिसिन, बट नेचुरली आपके हार्मोनल हेल्थ पे आपने ध्यान दे दिया है, सो आप अपने आप थर्ड इंग्रेडिएंट्स बैलेंस कर रहे हो। फोर्थ इंग्रेडिएंट्स इज स्लीप एंड स्ट्रेस इन योर लाइफ। अगेन जो आपने पॉइंट बोला था, हम 12 बजे सोते हैं, 90% भावना, ये लोग मान के चलो, ये जो 12 बजे सो रहे हैं वो मोबाइल पे सिर्फ रील देख रहे हैं, ठीक है। काम करने वाले नहीं होते हैं जो 12 बजे, वो एक क्लास है जिसको वर्क करना पड़ रहा है, वो डिफरेंट है। वो एक मतलब मैंने तो अभी चेंज कर लिया अपना शेड्यूल और उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है, पर वो एक मुझे लगता है वो एक हमारा जो 10 to 12 या 9 to 12 वाला मी टाइम होता था, वो एक्चुअली में मी टाइम नहीं, फ़ोन टाइम होता है, जिसे हम मी टाइम बोल देते कि यार ये मेरा मी। भावना, एक चीज़ बहुत चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे सबको, एज अ लाइफस्टाइल, आपकी बॉडी के हिसाब से। आपकी बॉडी को 10 साढ़े 10 बजे सोने की आदत है। अपन बहुत बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को नींद नहीं आती। मैं हमेशा बोलती हूँ 10 साढ़े 10 बजे सो के देखो। सिंपल, ये मत करो कि ये करना है, वो करना है, ये करूँ वो करूँ। सिंपल 10 साढ़े 10 बजे आप सो के देखो। जिस दिन आप 10 साढ़े 10 बजे सो के देखोगे, आपको नींद नहीं आती हुई भी 11 बजे नींद आ जाएगी। कंडीशन बीइंग कि आपने खाना 2 से 3 घंटे पहले, 3 घंटे पहले खाया हुआ हो और उसके बाद आप टाइमली सो रहे हो। अब आप जब 10 साढ़े 10 सो जाते हो तो आपकी बॉडी, अगर आप स्टडी करोगे, मैं आपको एक चार्ट भेजूंगी, आपकी बॉडी का क्लॉक होता है कि मेरा इस समय ये बॉडी मसल्स, ये बॉडी ऑर्गन डिटॉक्स कर रहा है, उसके बाद ये बॉडी ऑर्गन डिस्कर किडनी कर रही है, उसके बाद लीवर कर रहा है। सो अगर आप 10 साढ़े 10 सो रहे हो तो आपकी बॉडी का डिटॉक्सिंग प्रोसेस टाइमली शुरू होता है। आपकी बॉडी अपने आप 10 से लेके 5 बजे तक आपकी नींद देगी। 4:30 5 बजे इज़ द आइडियल टाइम टू वेक अप। एज अ, अपने शास्त्र, अपने स्क्रिप्चर्स में हमेशा लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। दैट इज़ द मी टाइम दैट यू शुड गिव टू योर बॉडी एज अ मॉर्निंग टाइम।
अब आजकल अपन क्या देते हैं, वो 8 रात को 10 से 12 कर देते हैं, उसकी वजह से आपका बॉडी का डिटॉक्सिंग गड़बड़ शुरू होता है। फिर हम बोलते हैं हमें नींद नहीं आ रही, फिर हम आगे ब्लेम करना शुरू कर जाते हैं, यार मेरा तो बाउल मूवमेंट नहीं सही है। जब आप टाइम से सोओगे नहीं, आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं करेगी, तो बाउल मूवमेंट कैसे सही होगा? और वो मी टाइम होता भी नहीं है, फ़ोन टाइम हो जाता है। आई थिंक हम मॉर्निंग वाला मी टाइम ज़्यादा या उसने के बाद आप अपना फ़ोन थोड़ी देर मत छोड़ो, नहीं तो फ़ोन उठाया तो वो वहाँ पे मी टाइम की जगह फ़ोन टाइम हो जाएगा। अपने लिए टाइम दो, अपनी जर्नलिंग करो, अपना डे प्लान करो, अपने लिए जो करना है वो करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, वर्कआउट करो, वॉट एवर यू वॉन्ट एज योर 1 hour टू बी, इट डिपेंड्स अपॉन योर रूटीन, देन स्टार्ट योर डे, दैट शुड ओके। अभी पॉडकास्ट से पहले हम गट हेल्थ के भी बारे में बात कर रहे थे कविता, तो यू सेड कि आपका फर्स्ट ब्रेन इज़ अ गट ब्रेन, तो So there is 2 brain in your body. First and foremost, I would say it's not just this brain. It's your gut brain and your mind brain. Now आपके कोई भी सिग्नल आपके गट से ब्रेन में जाने में, जैसे मैंने अभी आपको सिंपल बताया कि आप 20 मिनट खाना में लगाओ, आपको पता चलेगा कि आपका पेट कैसे भरता है या क्या है। इट्स नॉट अबाउट कि आप 3 रोटी खा रहे हो, इट्स अबाउट कि 1 रोटी खा रहे हो, उसमें भी आपके गट ने और ब्रेन को 20 मिनट। सो गट ब्रेन इज़ अ थिंग दैट नीड्स टू बी हैंडल मोर प्रॉपरली। अगर आपका गट ब्रेन सही होगा तो आपका माइंड ब्रेन इवन ज़्यादा वर्क करेगा, आपकी बॉडी में कोई भी बीमारियां नहीं होगी। सो गट ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भावना। गट ब्रेन को सही करने का तरीका यही है कि खाने का टाइमिंग और खाना क्या किस समय खाना है ज़रूरी है। सुबह पराठे नहीं खाने या सुबह ऐसा नहीं खाना, रात को क्या खाना है वो चीज़ ज़रूरी है। डाइट इज़ ऑल अबाउट ईटिंग राइट ऑन द टाइम, सो दैट्स वायर द गट ब्रेन कम्स। नाउ गट ब्रेन को और डीपली आप एनालाइज करोगे तो आई वुड से कि आई वुड आस्क यू वन क्वेश्चन, डू यू डू मेडिटेशन और मेडिटेशन समथिंग? I used to do. या सो वर यू वेरी इजीली डूइंग एबल टू डू दैट, या आपको लगता है यार मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, 10 मिनट भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, या ऐसा कुछ लगता है? स्टार्टिंग में आई थिंक मोस्ट मैक्सिमम 3 days 2 days, और उसके बाद आप यू स्टार्ट इंजॉइंग दैट थिंग। सो 3 days 2 days जब आपका माइंड नहीं लगा, उसके बाद आपका माइंड लगने लगा एंड धीरे धीरे टाइम बढ़ने लगा। सो आपने नोट करा होगा आपकी भूख भी उस समय कम होने लग जाएगी, आपका खाने के ऊपर इंटरेस्ट भी उन चीज़ों पे जाने लग जाएगा जो हेल्दियर थे या आपकी बॉडी डिमांड करने लग जाएगी। मैंने नोटिस किया, अगर मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, योगा करती हूँ, तो मैं पूरा दिन वैसे ही बहुत माइंडफुल ईटिंग करती हूँ और आप एक कॉन्शियस रहते हो अपने उसको। या सो वो आपका गट ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है कि खाना क्या खाना चाहिए, आपकी बॉडी डिमांड कर रही है। यू आर नॉट ईटिंग कि खाना खा रहे हो मतलब सिर्फ टाइम से या मेरे को भरना है पेट इसलिए खा रहे हो। यू आर लिसनिंग टू योर बॉडी, यू आर लिसनिंग टू योर गट ब्रेन एंड देन योर गट ब्रेन इज सिग्नलिंग योर माइंड ब्रेन टू वर्क अकॉर्डिंगली। सो योर गट ब्रेन इज द इम्पॉर्टेंट ब्रेन. There is one very good book, Gut Brain Connection, so it has to be taken up and read up to understand how important your gut brain is. हमने इंटरमीडिएट फास्टिंग की भी बात की, तो बहुत सारे जो डाइटिशियन है वो मतलब सपोर्ट करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग को और बहुत सारे नहीं भी करते, तो आप इस पे क्या बोलेंगे कि ये एक हेल्दी वे है वेट लॉस करने का या नहीं? See, the intermittent fasting again is a way to eat your food. Fasting is a very big study, a very big thing, and eating right आफ्टर फास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फास्टिंग से क्या होता है, अगर आप फास्टिंग की साइंस के पास जाओगे तो 12 घंटे बाद आपकी बॉडी ऑटोफैगी मोड में आ जाती है. ऑटोफैगी के ऊपर रिसर्च भी हो चुकी है, नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है. नाउ व्हाट इज़ ऑटोफैगी? ऑटोफैगी इज़ कि आपके जो खराब सेल्स है बॉडी के, हेल्दी सेल्स उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, इन सिंपल लेमैन लैंग्वेज. सो व्हेन योर बॉडी स्टार्ट्स इनटू ऑटोफैगी यू विल स्टार्ट healing your body. So आप जैसे जैसे fasting time बढ़ाते हो it heals your body. There is fasting of 24 hours for 36 hours. I'm not saying to go into any of the thing, but as a regular lifestyle you should work on a circadian rhythm. Eating with the sunrise and the sunset to keep yourself healthy is the basic rule for everybody. नाइट बिंज ईटिंग इज़ नॉट नीडेड. वो अभी का सिनेरियो है. या पहले ज़माने में जहाँ पे गो टू द स्टार्टिंग थिंग, जब अपना इवॉल्विंग हुआ था, लोग खाना ढूंढते थे, खाने के लिए सर्च करते थे. उनके पास ये स्टोरेज नहीं थी जो अपने हैं कि फ्रिज में रख दो या रख दो. सो वो खाना ढूंढने निकलते थे. सो आप सोचो, जब खाना ढूंढने सुबह उठेंगे, उसके बाद सनराइज़ होगा तो खाना ढूंढने जाएंगे, तो वो कब खाते थे? पहले 11 बजे तक खाना मिला उनको, सब्जियां ली, जो करी वो किया. फिर जब
फायर आया तो उस पर पकना शुरू हुआ। उससे पहले तो रॉ ही खाते थे। सो अगेन रॉ वॉज द कल्चर इन द थिंग। सब जब रॉ खाया लिया करा तो आपने रॉ खाया, उसके बाद वापस वो ढूंढना शुरू करते थे, फिर जाके शाम के टाइम पे खा के फिर सो जाते थे। तो आइडियली तो वही था ना, रात सन छिपने से पहले जितना ढूंढा बनाया खा के सो गए। तो फिर खाने का टाइमिंग तो पुराने इवॉल्विंग टाइम में वही था। बट जैसे जैसे ये सिनेरियो चेंज हुआ है, जैसे जैसे ये सब चीज़ें आती गई है अपने पास, नई नई चीज़ें आती गई है, मैंने स्टोरिंग करना शुरू कर दिया। स्टोरिंग के बाद वो स्टोरिंग इतनी हो गई है कि फ्रिज में बहुत स्टोरिंग हो जाती है, देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन द बॉडी। सो सिंपल, कीपिंग इट वेरी सिंपल, ईटिंग 2 to 3 meals a day, गिविंग गैप बिटवीन योर मील्स, ईटिंग एज अ बॉडी डिमांड्स, लाइक बहुत सिंपल चेंजेस मैंने बताया कि सुबह ये खा लिया, अपने लंच में ये करके, एंड मेकिंग अ माइंडफुल थिंग कि मेरी प्लेट ऐसी है जिसमें मैं खा रही हूँ। यू कैन हैव अ हेल्दियर लाइफ स्टाइल एंड सिंपल ईटिंग हैबिट्स। उसमें ये कुछ नहीं है कि मेरे को आज यही खाना है, या मेरे को ये न्यूट्रिशनिस्ट ने बोला है कि इस समय 1 कटोरी राजमा भिगो के खाओ। दिस इज़ नॉट द वे ऑफ ईटिंग। ओके, एंड कविता, वेट लॉस और फैट लॉस में क्या डिफरेंस है? So weight loss can be just a water weight loss in your body also, but fat loss is converting your fat and mobilizing your fat and getting a leaner thinner body. So weight loss आपने, हो सकता है आप एक दिन उठे मेरे को 1 किलो कम दिख रहा है, दूसरे दिन मेरे को 1 किलो ज़्यादा दिख रहा है, दैट इज़ अ वाटर वेट इन योर बॉडी दैट गोज इन टू इट. आइडियली यू शुड फोकस ऑन अ फैट लॉस फॉर योर बॉडी वेर यू बिल्ड ऑन योर मसल मास एंड योर फिटर बॉडी. दैट इज़ अ फैट लॉस इन योर बॉडी. ओके कविता, अभी आपने बात की स्ट्रेस के बारे में और अपने स्लीपिंग शेड्यूल के बारे में, तो क्या स्ट्रेस आल्सो वेट लॉस में एक मेन फैक्टर रहता है? वेट गेन में, सॉरी. सो अगर आपकी बॉडी में कभी भी स्ट्रेस रहेगा तो आपकी इंटरनल मसल, आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड हो जाएगी. सो जब स्ट्रेस रहता है तो आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में सो ब्लोटिंग एंड अदर सिम्टम्स दिखने शुरू होंगे. दैट विल बिल्ड अप टू अ weight gain thing. So stress is a very important factor. Again, it's one of the very important ingredients that we need to balance it out with whatever way we do, bit of whatever things we do, like a meditation or anything that we like to do. So we need to build on a habit. We need to work on our things that we like to do. That is where we remove the stress from your body. कुछ stress अच्छा है. A level of stress is good because it keeps you in a working mode, but stress beyond that level is harmful for your body, so we need to work for that. आपने मेंशन किया था कि आपका एक पैशन प्रोजेक्ट है मिराकी, तो हाउ मिराकी हेल्प्स टू बैलेंस दीज थिंग्स? Yeah, so during the COVID time I realized a lot कि there is a mental stress all over. आपको भी, सबको ये स्ट्रेस था कि क्या होगा, मेरे को हो गया तो मेरे को क्या हो जाएगा, बिकॉज उस समय इतना पैनिक था. ठीक है, इवन माई clients, even my girls, those who are doing workout, I used to feel there is some lacking. जो मैं उनको मेंटली, उनके वो फियर है. मैं घर से क्लासेस लेती थी, मैं जूम पे क्लासेस लेती थी, बट वो मेंटल फियर was always there. Then I came up with then I started reading and researching then how I should work and remove the stress. And believe me, how I started this journey of Miraki is a very beautiful journey and I would like to share with you. While I was studying, I came across chakras and chakra concept in our body. So आपकी body में 7 chakras होते हैं important. There are many chakras, 200 plus chakras, but 7 most important chakras होते हैं. And that chakras governs that part of your body. अब जब चक्रास होते हैं तो चक्रास आर एसोसिएटेड विद द कलर्स इन योर बॉडी. नाउ व्हेन आई वाज रीडिंग दिस एंड वन फाइन डे ड्यूरिंग जून और जुलाई, आई वुड से मेरे को रेनबो दिखा. ओके, नाउ जब रेनबो दिखा तो आई वाज सर्चिंग कि चक्रास है, आपके चक्रास हर कलर रेनबो कलर से ही अडॉप्टेड है. एंड जब रेनबो कलर से अडॉप्टेड है, सो आई स्टार्टेड माई स्टडीज़ एंड बीइंग मेरी क्यूरियोसिटी मेरे को लेके गई कि इसके ऊपर और कुछ होना चाहिए, कुछ है जो चक्रास है और रेनबो है, इनका कनेक्शन होना चाहिए. देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड अप्लाइंग चक्रास एंड अ मेडिटेशन, चक्रा बेस्ड मेडिटेशन टू माई classes, and I used to give my girls last 5-7 minutes of breathing and chakra based meditation center, and I started reading by myself on behind the things. Then I came across कि चक्रा के ऊपर तो पूरा डाइटरी कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि अगर सपोज आपका रूट चक्रा होता है आपके पेल्विक रीजन पे, ठीक है, आपका बेस कनेक्ट होता है. वो किस चक्रा से रिलेटेड, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, आपकी बॉडी के फियर मैकेनिज्म से.
fear and flight mechanism से, any anxiety, anything deep rooted is related with your root chakra. And during the COVID time, there was all fear in their minds and everything was there. Then I started researching on the food and all. Then I came across and clubbed everything and come into a Miraki. So that was Miraki as a word means doing something for yourself, giving out the best for yourself. And I have mentioned it as a Miraki, a journey of self-love. So that's where Miraki came into picture. And Miraki workshop, what I do, it's a workshop for 21 days and 15 days where I take you to a journey on cleansing your body. जब आपकी बॉडी क्लींस हो जाती है तो वो स्ट्रेस रिलीफ हो जाती है. उसके बाद जब आप मेडिटेशन एंड योग निद्रा और प्राणायाम्स की तरफ जाते हो, सो यू फील एन अमेजिंग ऑरा अराउंड यू. यू बिल्ड योर ओन ऑरा. वो जो ऑरा होती है दैट रिलीज यू आउट ऑफ एनी स्ट्रेस, एनी डिप्रेशंस, एनी मेंटल एग्जाइटी. अगर ये सब खत्म होता है तो बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होने लग जाता है. एंड members who have joined Miraki have experienced a marvelous change within 21 days. Even you won't believe, one of my member called me after 3 days कि मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा. शी वॉज हैविंग अ PCOD इशूज़ एंड शी वॉज विथ माई DTF एंड डूइंग वर्कआउट. तो बहुत चेंजेस आने शुरू हो गए थे बट स्टिल शी वॉजेंट एबल टू. उनकी डॉक्टर ने उसे बोला था कि आप कंसीव नहीं करोगे. वो मेरे पास 6 महीने के लिए आई थी. एंड मिराकी भी किया उन्होंने साथ में. उसके विदिन 7 days शी हैड कंसीव्ड हर सेल्फ. जबकि डॉक्टर्स को भी आश्चर्य हो रहा था कि वो कंसीव कैसे कर रही है. उनके साथ तो वो कुछ भी दवाई भी नहीं ले रही, ये भी नहीं कर रही. इट्स ऑल अबाउट योर बॉडी. बिलीव मी कि आपकी बॉडी ने आपको कोई प्रॉब्लम दी है तो उसके अलावा किसी के पास ये सोल्यूशन नहीं है कि वो हील कर सके. अब उस हीलिंग को एक्टिवेट कैसे करना है डिपेंड्स अपॉन यू. राइट डाइट, राइट मूवमेंट, राइट stress release mechanism for your body. That's where Miraki came into picture, and it was a combination of giving a right diet to your gut and then connecting a gut-brain connection for yourself, and then working on your energy systems of your body, that is your chakras, and releasing all the stress, all the anxiety, all the mental, physical, emotional stress from your body, and there where you come up as a perfectly detox person. थैंक यू सो मच कविता. आज का आई थिंक इट वॉज ए वंडरफुल पॉडकास्ट. एक फाइनल मैसेज मेरी ऑडियंस के लिए आप क्या देंगे? You mentioned last message क्या होगा. So I will say कि be your own Miraki, build your own Miraki. That is prioritize yourself, take time for yourself and love yourself the most.